inspiring and interesting lecture. Please put your hands together and let's welcome Professor Mrs. Krishna Mishra ma'am. Professor Krishna Mishra ma'am earned PhD, FNASC, FBRSI. At present, she is Honorary Professor, Indian Institute of Information Technology, Allahabad, and at CBMR, SGPGI Campus, Lucknow, Chief Advisor, India Pesticides Limited, Lucknow, and Chairperson of STEM, Science, Technology, Engineering, Medical and Mathematics, a national program of Department of Science and Technology, New Delhi. President, Bioinformatics Welfare Society of India and President, Society for Biotechnology Research and Rural Development. Her past designations includes Assistant Professor at Miranda House, Delhi, Postdoctoral Fellow of INSA at CBRI, Lucknow, Superannuated Lecturer, Leader and Professor of Chemistry, Head of Department of Biochemistry, and Coordinator Center for Biotechnology at University of Allahabad, India. Had been the member for Task Force of Department of Biotechnology, Government of India. Chairperson of Chemistry Advisory Committee of UPCST, Fellow and Founder Member of BRSI, Biotechnology Research Society of India. She has been expert in many selection committees, including Union Public Service Commission, King George Medical University, Lucknow, SDPGIMS Lucknow, and many other colleges and universities, and marked her recognition on editorial boards of many national and international journals. Dr. Krishna. At the very onset, I would like to thank your organizers, your Honorable Vice Chancellor, and especially the whole team, organizing team, who has invited me for interaction with you, the young students. That is my passion in life now at this stage, to interact with young people like you. So I am thankful to them for giving me this occasion to interact with you. You are open to any questions, whatever you like. Okay? Now this program is under Inspire program of Department in Science Technology. As has been told to you, I prepared a short PPT for telling you the details of Inspire program, but it has already been told to you in so many very clear cut this thing, that what are your chances of getting this fellowship throughout. I tell you, when this Inspire program, the idea of Inspire program was started, I had discussions because National Academy of Sciences was involved in it, and we had a lot of discussions. The main idea, as has been told to you, was that there should not be any entrance examination for any fellowship. It should be made a part of all the basic courses which you follow. There is like जैसे होता है ना, ये जी के होता है, नीट का एंट्रेंस टेस्ट होते हैं, इस तरह का कोई एंट्रेंस टेस्ट नहीं है इंस्पायर के लिए. केवल आपको अपने ही जो सिस्टम आप फॉलो कर रहे हैं, वो कोई भी बोर्ड है, जैसे यूपी बोर्ड है, एससी बोर्ड है, सीबीएसई बोर्ड, किसी में भी, कोई भी कंट्री भर में आप किसी भी बोर्ड में आप ये हैं, क्लास 6 से लेकर के और फैकल्टी पोजीशन तक आप सब कुछ इंस्पायर प्रोग्राम में पा सकते हो, प्रोवाइडेड यू आर अमंग्स द टॉप फ्यू, एज हैज बीन टोल्ड. तो मैं इंस्पायर प्रोग्राम से बहुत अटैच रही हूँ, एंड एज जनरल सेक्रेटरी ऑफ नेशनल एकेडमी ऑफ साइंसेज, मैं कंट्री भर में छोटे छोटे इंटीरियर रूरल एरियाज में गई हूँ, और बच्चों का जो 5,000 रुपया दिया जाता था एक प्रोजेक्ट बनाने के लिए, उन बच्चों से मैंने डायरेक्ट इंटरेक्ट किया है. एंड आई टेल यू, मुझे मेरा एक्सपीरियंस से मुझे ये लगा कि इंडिया में बहुत टैलेंट है. हमारी कंट्री वर्ल्ड की नंबर 1 हो सकती है, क्योंकि छोटे छोटे बच्चे
क्लास 6 के, उनका इतना ज़्यादा उनका थॉट है, एक थॉट प्रोसेस, वो क्या सोचते हैं, क्या कॉन्सेप्ट उनके दिमाग में है, और आई वाज सरप्राइज्ड। तो टैलेंट की कमी नहीं है, लेकिन अफसोस की बात यह है कि उतना हमारे पास स्पेशली रूरल एरियाज में उतना इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, उतनी उनको पहुंच नहीं, उनको पता ही नहीं है कैसे करना है। तो ये इसमें सुधार होना चाहिए शिक्षा के उसमें, स्पेशली रूरल एरियाज में, और जो पिछड़े इलाके हैं वहाँ बहुत ज़रूरत है इम्प्रूवमेंट। तो मैं तो बहुत अटैच रही हूँ। दूसरा, ये अभी हमारे IIIT में एक कॉन्क्लेव हुआ करता था नोबेल लॉरियट्स, हर साल 10 से 15 नोबेल लॉरियट्स इनवाइट किए जाते थे, और इंस्पायर के बच्चे, जो टॉपर बच्चे होते थे, उनको बुलाया जाता था, और ज़्यादातर उसमें स्पेशली लाइफ साइंसेज में, केमिकल साइंसेज में मैं इंटरेक्ट कराती थी उन नोबेल लॉरियट्स को बच्चों के साथ। तो मुझे इसमें काफ़ी एक्सपीरियंस रहा है। जो बच्चे क्वेश्चन पूछते थे बहुत सारे नोबेल लॉरियट से, तो बहुत इंटरेस्टिंग हुआ करता था इंटरेक्टिव सेशन। खैर, ये तो मुझे बहुत खुशी है कि आज मैं यहाँ आप लोगों के साथ इंटरेक्ट करने आई हूँ। मेरा जो आज का ये विषय है, मैं आप लोगों को सिंपल एक बहुत साधारण भाषा में, जैसे कि कहा कि बहुत से यूपी बोर्ड वाले हैं तो एक हिंदी में होना चाहिए, तो मैं ज़्यादातर कोशिश करूँगी कि आपसे हिंदी में ही बताऊँ विज्ञान क्यों पढ़ना चाहिए। देखिए, ऐसा नहीं है कि दूसरे विषयों में भी बहुत स्कोप है, लेकिन कम से कम शुरू में, क्योंकि विज्ञान आपको एक सिस्टमैटिक अप्रोच सिखाता है, तो इसलिए साइंस जो है वो एक लेवल तक पढ़ना बहुत ज़रूरी है। बाकी आपका पैशन है। देखिए, मैं हमेशा कहती हूँ बच्चों, आप अपने माँ बाप के या किसी के भी प्रेशर में मत आइए। आपका जो लाइफ में जो पैशन है वही करें, जो आपको अच्छा लगता है, क्योंकि उसमें आप सक्सेसफुल होंगे, सफल होंगे। इसके साथ मैं चाहती हूँ, और मैं क्षमा चाहती हूँ कि मुझे बैठ के बोलना पड़ेगा, क्योंकि बहुत देर तक खड़ा होना पॉसिबल नहीं है, तो आप लोग मुझे क्षमा करें। लेकिन मैं आपको ये शुरू करना चाहती हूँ। प्लीज चेंज। देखिए, ये आप लोग सब जानते हैं कि बिना साइंस एंड टेक्नोलॉजी के कोई भी देश तरक्की नहीं कर सकता। इसलिए किसी भी सोसाइटी को सक्सेसफुल होने के लिए साइंस और टेक्नोलॉजी की ज़रूरत है, बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट। देखिए, साइंस में कोई कंट्री या कोई बाउंड्री नहीं है, ये तो ग्लोबल है। बाकी विषय देख लीजिए, ज्योग्राफी है, आपका ज्योग्राफी की सीमाएं होती हैं, हिस्ट्री है, हिस्ट्री भी अलग होती है, हर देश की हर उसकी अलग अलग है। बाकी सब्जेक्ट्स में भी आप अलग अलग सबके वो हैं, लेकिन साइंस एक ऐसा विषय है जो आप यहाँ जो भी पढ़ रहे हैं एग्जैक्टली वही एक बच्चा वहाँ न्यूयॉर्क में भी वही पढ़ेगा, इंग्लैंड में भी वही पढ़ेगा। साइंस में कोई फर्क नहीं होता। तो ये ग्लोबल लेवल पर है, इसलिए साइंस में जो भी आप काम करें, जो पब्लिश करें या जो भी रिसर्च करना हो, उसको हमेशा ये सोचना चाहिए कि जिस मोमेंट आप उसको पब्लिश करेंगे तो सारी दुनिया को पता, आजकल तो मास मीडिया का ज़माना है, इसलिए तुरंत ही वो पता लग जाता है। तो इसलिए आपको सोच कर चलना चाहिए विज्ञान में कि आप जो भी कह रहे हैं, जो आप समाज को बता रहे हैं, वो पूरा संसार उसको सुन रहा है। तो विज्ञान जो है ये बहुत ज़रूरी है। लुई पाश्चर का नाम तो सभी ने सुना होगा, क्योंकि आज भी लुई पाश्चर इतने फेमस हैं, जो फर्मेंटेशन, उससे एंजाइम उन्होंने ही शुरू किया था। आज भी हम पाश्चराइज्ड मिल्क जानते हैं क्या है, तो लुई पाश्चर का नाम सबने सुना। नेक्स्ट, ये देखिए, हम कलाम साहब को सब जानते हैं। कलाम साहब ने जो काम किया है, मतलब उन्होंने विज्ञान में, स्पेस में, और अपने प्रेसिडेंट से छोड़ने के बाद उन्होंने जो देश भर में भ्रमण करके और सबको बताया, विज्ञान के बारे में बताया और इम्पोर्टेंस बताई, तो हम लोग सब जानते हैं। देखिए, एक स्टेटमेंट मैंने यहाँ रिकॉर्ड किया था, जो कि दिल्ली में उन्होंने 11th इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस में बोला था।
the lesson we derive out of experience is that innovative and student-friendly solutions are needed to enable scientific learning in the youth, especially those in rural and remote regions of the nation or the world. तो ये बहुत ज़रूरी है. उन्होंने बताया था कि इस तरह के जो विज्ञान की नॉलेज है वो हमारे रूरल एरियाज़ में और जो ट्राइबल एरियाज़ हैं, और मुझे खुशी है कि गवर्नमेंट कोशिश कर रही है, हर तरह से हो रहा है, लेकिन अभी उसमें बहुत सुधार की ज़रूरत है. नेक्स्ट, अब देखिए साइंस क्यों पढ़ी जाए, क्योंकि साइंस में बहुत चैलेंजेस हैं. आप अगर केमिस्ट्री पढ़ते हैं तो आप जानते हैं कि कुछ चीज़ से शुरू करते हो और उसको एक यूजफुल प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर लेते हो, सिंथेसिस करते हो, और वो चीज़ जो है समाज के लिए यूजफुल होना चाहिए. बहुत सारी जैसे हमारी जो इंडस्ट्री है हिंदुस्तान में, फार्मा इंडस्ट्री हो, केमिकल इंडस्ट्री हो, टेक्सटाइल इंडस्ट्री हो, कोई भी इंडस्ट्री है, वो एक साधारण जो कि अवेलेबल मटेरियल होता है उससे शुरू करते हैं और एक यूजफुल मटेरियल में कन्वर्ट कर लेते हैं. आजकल तो जो वेस्ट निकल रहा है, एग्रीकल्चरल वेस्ट, जिसमें आपने अखबारों में पढ़ा होगा कि वो जला दिया और उससे पोल्यूशन हो गया और ये हुआ, उसको भी ये लोग कोशिश कर रहे हैं कि यूजफुल चीज़ों में कन्वर्ट कर लें ताकि उसको जलाना ना पड़े, पोल्यूशन ना बढ़े. तो इस तरह की रिसर्च जो है, वेस्ट मटेरियल जो पानी की समस्या हम लोगों की सबसे बड़ी समस्या है, पानी को किस तरह से आप रिसाइकिल करें, इंडस्ट्री में इतना यूज़ होता है, उसको किस तरह से रिसाइकिल किया जाए. तो ये इस तरह की प्रॉब्लम्स हैं जो कि बहुत ही चैलेंजिंग प्रॉब्लम्स हैं. और ये जो यंगर जनरेशन यहाँ मैं देख रही हूँ बैठे हुए लोग, सब बच्चों सोचो, कुछ आप लोग जो भी कर सकते हो समाज के लिए वो करो, कोशिश करो, आज से ही कोशिश करो. और देखिए ये बहुत सारी आपने सुना होगा कि हिंदुस्तान ने वैक्सीन बनाई कोविड के ड्यूरेशन में, और हमारे भारत ने बहुत जल्दी वैक्सीन बनाकर दुनिया को दिखा दिया कि हम लोग भी विज्ञान में सबसे आगे हैं. तो ये इस तरह की चीज़ें हैं, ये साइंस से ही पॉसिबल है कि आप इतनी चीज़ों को. बाकी देखिए एक ग्लोबल लेवल का एक इंटरव्यू हुआ था जिसमें मुझे पूछा था कि आपने साइंस क्यों पढ़ी, आपको किस चीज़ ने प्रेरित किया. तो मैंने इमीडिएट सोचा कि हाँ मैंने साइंस क्यों पढ़ी, तो मुझे याद आया कि हाँ मैं जब छोटी थी बचपन में देखती थी कि कितनी तरह के पौधे हैं, अलग अलग तरह के पेड़ हैं, अलग अलग तरह के एनिमल्स हैं. तो मुझे लगता था कि ये इतनी बायोडाइवर्सिटी कहाँ से आ गई, इतनी तरह के लोग, कि इसको देखना चाहिए कि ये एक पेड़ में, जैसे नीम के पेड़ में आम क्यों नहीं लग जाता, इस तरह की चीज़ें दिमाग में आती थी. तो मुझे लगता था कि ये पढ़ना चाहिए कैसे हुआ है, कि लाइफ का इवॉल्वमेंट कैसे हुआ. तो उस चीज़ से मुझे ये लगा कि नहीं, एक पैशन बना कि मुझे साइंस पढ़ना है, देखना है कि कैसे होता है. तो ये चीज़ें जो है बहुत चैलेंजिंग है साइंस. नेक्स्ट देखो, हाँ ये मैंने आपको बताया ना, जैसे वैक्सीन बनाई गई कोविड के लिए. और दूसरा ये कि आपने देखा होगा कि तारे टिमटिमाते हैं. कभी सोचा कि चांद से जो रोशनी आती है वो क्यों नहीं टिमटिमाता, सितारे क्यों टिमटिमाते हैं? ठीक है, एक क्वेश्चन आया दिमाग में, तो उसका सोल्यूशन भी है ना. फिर आसमान नीला ही क्यों दिखता है, हरा क्यों नहीं दिखता, लाल क्यों नहीं दिखता? तो इस तरह के सवाल आने चाहिए ना, दिमाग में आने चाहिए, तभी तो आप उसका सोल्यूशन देखोगे. एक सिंपल चीज़ है, देखो ये हमारे यहाँ खाली नोबेल प्राइज मिला था जिनको रामन, डॉक्टर रामन को, उन्होंने ही ये बताया था. वो समुद्र में यात्रा कर रहे थे शिप में, और इंग्लैंड जा रहे थे किसी उसके लिए, डिस्कशन के लिए, और मेडिटेरेनियन सी में शिप में बैठे थे. तो देखा कि समुद्र का पानी भी नीला है. तो उनको लगा कि अच्छा ये आसमान नीला है, इसलिए ये इसकी रिफ्लेक्शन हो रहा है, इसलिए समुद्र का पानी नीला है. तुम्हें पता है रामन ने जब अपना पहला पेपर छापा था तो स्टूडेंट थे, विद्यार्थी जीवन में, और ये लाइट पर उस समय रेले वर्ल्ड में बहुत फेमस साइंटिस्ट थे,
उन्होंने जब इनका पेपर देखा तो उन्होंने सोचा कि ये हिंदुस्तान के बहुत बड़े विद्वान, बहुत बड़े साइंटिस्ट हैं, और उन्होंने जब इनसे कांटेक्ट किया तो इट वाज सरप्राइज्ड कि ये स्टूडेंट है, स्टूडेंट लेवल पर ये कर रहे हैं। तो लाइट में आपने पढ़ा होगा, तो लड़के बच्चे या फिजिक्स में पढ़ते हैं कि रेले स्कैटरिंग और रामन स्कैटरिंग, उसी से रामन स्पेक्ट्रा बना। तो ये चीज़ें उसमें एक्सप्लेन है कि कैसे एटमॉस्फेयर जो है उसकी वजह से तारे हमको टिमटिमाते हुए दिखाई पड़ते हैं। तो ये चीज़ें हैं बच्चों, ये सोचने वाली बात है। जब दिमाग में कोई सवाल आएगा तो उसका सोल्यूशन आप ढूंढोगे, है ना, तब आपको अच्छा लगेगा। नेक्स्ट, हाँ ये देखिए, पहले साउंड की डिस्कवरी हुई कि आवाज़ है, हम यहाँ से बोल रहे हैं, आपको वहाँ तक आवाज़ आ रही है। ये कैसे ट्रैवल कर रही है? आप जानते हैं वेव्स, लाइट भी वेव्स में चलती है, साउंड भी वेव्स में चलती है, फिजिक्स में पढ़ते हो। तो लाइट की, साउंड की डिस्कवरी हुई कि साउंड जो है वो ये वेव मोशन में चलता है। उस समय ग्रैहम बेल का नाम सुना होगा, जिन्होंने टेलीफोन को डिस्कवर किया, वो भी 18 साल की उम्र में। उन्होंने जब देखा कि साउंड ऐसे चल रही है तो सोचना शुरू किया, और सोचने के बाद उन्होंने टेलीफोन डिस्कवर किया। तो बच्चों केवल 18 साल की उम्र में उन्होंने, क्योंकि सोच एक ये आया कि साउंड है, इससे क्यों ना हमें कुछ ऐसा यंत्र बनाए कि जिसके थ्रू हम इतनी दूर तक ही नहीं और दूर तक आवाज़ पहुंचा सकें। उस आइडिया से उन्होंने टेलीफोन बना दिया। नेक्स्ट प्लीज। अब ये देखिए, जो मैंने अभी कहा ना, तरह तरह के एनिमल्स हैं, तरह तरह के प्लांट्स हैं, बायोडाइवर्सिटी जिसको बोलते हैं। ये बायोडाइवर्सिटी के बारे में चार्ल्स डार्विन, जिनकी थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन कहा जाता है, वो भी 18 साल की उम्र से सोचना शुरू किया। उन्होंने ये थ्योरी दिया था कि कैसे लाइफ इवॉल्व हुई। राइट, नेक्स्ट। तो बच्चों, आप लोग भी इसी एज ग्रुप के हैं। तो जब ग्राहम बेल टेलीफोन डिस्कवर कर सकते हैं, चार्ल्स डार्विन एक इतनी बड़ी इवोल्यूशन थ्योरी दे सकते हैं, तो व्हाई नॉट ऑल ऑफ यू? आप भी उसी एज ग्रुप में हैं। कुछ करिए, कुछ सोचिए, सोचना शुरू करिए, सब कुछ यहाँ पर है। सोचेंगे तो सोल्यूशन ढूंढेंगे तो आप कुछ कर पाएंगे। नेक्स्ट। अब देखिए, अगर हम ग्लोबल लेवल पर देखें तो पिछली सेंचुरी हमारी फिजिक्स की सेंचुरी थी, क्योंकि फिजिक्स में सबसे ज़्यादा डिस्कवरीज हुई। और फिजिक्स में आप जानते हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स में ग्लोबल सीन था जिसमें माइक्रो प्रोसेसर बने, फाइबर ऑप्टिक्स हुआ, सैटेलाइट्स, हमारा चंद्रयान जो है उसमें सभी स्पेस की रिसर्च हुई, टेलीफोन्स बने, कंप्यूटर इंफॉर्मेशन, तो आपके आर्टिफिशियल, सब पिछले फिजिक्स की देन है ना, फिजिक्स की थ्योरी से ही इवॉल्व हुआ सब कुछ। लेकिन ये जो सेंचुरी है, आप जानते हैं कि 2001 से लेकर 2003 तक ह्यूमन जीनोम सीक्वेंस हुआ था। पूरा जीनोम ह्यूमन सीक्वेंस का इस सेंचुरी के शुरू में आ गया, और वो आने के बाद लोगों का इंटरेस्ट शुरू हुआ, क्योंकि जब पूरा जीनोम ना पता है, जीन सब पता है, तो उसके बाद उन्होंने कहा कि हम देखते हैं कि ये बीमारियों की कहाँ से हो रहा है, ये म्यूटेशन क्या है, क्यों बीमारी होती है, कौन से टारगेट्स हैं, कैसे हम दवा बना सकते हैं, कैसे उसको टारगेट तक पहुंचा सकते हैं। तो ये सब सोच शुरू हुआ और लोगों ने रिसर्च करना शुरू किया। तो ये सेंचुरी जो आज हम इसमें हैं, ये बायोटेक्नोलॉजी की सेंचुरी है, और यहाँ पर सारी चीज़ें, इवन कंप्यूटर साइंस, देखिए हमारे यहाँ IIIT में, मेरे यहाँ कंप्यूटर साइंस का डिपार्टमेंट है, IT के डिपार्टमेंट है, अप्लाइड साइंस में इंफॉर्मेटिक्स है, बायोमेडिकल इंजीनियर, सभी सब्जेक्ट्स हैं। कंप्यूटर साइंस वाले कहते हैं कि अरे बायो में मतलब कुछ ऐसा क्या है, लेकिन मैं उनको एक चीज़ कहती हूँ कि आप मुझे ये बताइए कि ठीक है, हार्डवेयर सॉफ्टवेयर आप ये बनाते हैं, ठीक है, लेकिन उसके बाद क्या, आपका कंप्यूटर किस चीज़ में अप्लाई करते हैं? सारे लोग बायोलॉजिकल प्रोसेसेस में अप्लाई करते हैं, सब मेडिसिन में। तो कंप्यूटर भी तो, उसका भी तो कुछ अप्लाइड होना चाहिए ना, कुछ इम्पोर्टेंस होनी चाहिए। आई थिंक कंप्यूटर साइंस इज वेरी गुड, लेकिन ये एक टूल है फॉर सॉल्विंग ह्यूमन प्रॉब्लम।
हमारी मेन प्रॉब्लम्स हैं हेल्थ से रिलेटेड, खाने से रिलेटेड, न्यूट्रिशन से रिलेटेड, हाइजीन से रिलेटेड, हमारी जो ह्यूमन प्रॉब्लम्स हैं हम उनके बारे में सोचें और हर तरह के टूल को हम उसमें अप्लाई करने के लिए बात करें। मेन चीज़ वही है। तो ये जो है ना बायोटेक्नोलॉजी बहुत वाइड अम्ब्रेला है और उसी में सारा कुछ ह्यूमन का जो है सब कुछ उसमें निहित है। अब नैनो टेक्नोलॉजी आ गया। नैनो टेक्नोलॉजी अब कहना चाहिए कि साइंस की एक नई ब्रांच आ गई जिसको हम 10⁻⁹ लेवल पर बोलते हैं और यहाँ पर सारी चीज़ें बदल जाती हैं। जो अभी तक आप लोग साइंस में मैक्रो स्केल में पढ़ते हैं वो जब आप नैनो स्केल में देखिए कुछ चीज़ें मैक्रो से माइक्रो हुई 10⁻⁻6 लेवल पर, लेकिन अब ये नैनो लेवल पर और आगे भी लोग कह रहे हैं कि पिको लेवल और आगे भी जाएगा 10⁻⁻15 तक लोग सोच रहे हैं कि क्या होगा, क्योंकि अभी नैनो लेवल पर भी मटेरियल की बहुत सारी प्रॉपर्टीज चेंज हो गई हैं। बहुत सारी लॉ लाइक ओम्स लॉ नहीं फॉलो होता। बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि साइंस में बिल्कुल चेंज हो गई हैं। तो ये नैनो टेक्नोलॉजी नैनो स्केल पर ड्रग्स बनाए जा रहे हैं, एक्टिव कंपाउंड्स बना रहे हैं। so much has been done. Next. अब देखिए बायोटेक्नोलॉजी के बहुत सारे एप्लीकेशंस हैं, मैं बहुत डिटेल में नहीं जा रही हूँ। और ये देखिए जो आज हमारी जो मेन प्रॉब्लम पोल्यूशन की है, पोल्यूशन है, हम लोग कहते हैं आगे को ड्रिंकिंग वाटर नहीं मिलने वाला है, क्या किया जाए। और बहुत आपने सुना होगा कि बहुत सारी प्रॉब्लम हमारी हो गई, हमारे कैपिटल में दिल्ली में ही पोल्यूशन की इतनी प्रॉब्लम है। तो उस तरह से हम बायोटेक्नोलॉजी में जो चीज़ें हैं उनको हम अप्लाई कर सकते हैं। देखिए उस बायोटेक्नोलॉजी का मेन जो है ग्रेटली रिड्यूस डिपेंडेंस ऑन नॉन रिन्यूएबल फ्यूल की प्रॉब्लम है। देखिए पेट्रोल कहाँ तक, डीजल, उसमें हम ऑल्टरनेटिव ढूंढे जा रहे हैं और ऑल्टरनेटिव्स में आपके ये जेट्रोफा का नाम सुना होगा, प्लांट बेस्ड फ्यूल्स आ रहे हैं और प्लांट बेस्ड फ्यूल्स में और भी काफ़ी ये रिसर्चेस हो रही हैं और हम वेजिटेबल ऑयल्स यूज़ हो रहे हैं अब ऑल्टरनेटिव फ्यूल्स की तरह ऑल्टरनेटिव एनर्जी यूज़ हो रही है, सोलर एनर्जी समथिंग क्योंकि हम ज़्यादातर यूज़ कर रहे हैं। तो इस तरह की चीज़ें हैं। पोल्यूटेंट्स और रेमिडिएशन एनवायरनमेंट का वो बायोटेक्नोलॉजी से ही संभव है। और सस्टेनेबल में मैं आपको बताना चाहूँगी, देखिए आजकल जो केमिकल इंडस्ट्री है या फार्मा इंडस्ट्री है, जो ड्रग्स बना रहे हैं, जो फर्टिलाइजर बना रहे हैं, जो पेस्टिसाइड्स बना रहे हैं, ज़्यादातर केमिकल प्रोसेस से बनाते हैं। ठीक है, कुछ भी स्टार्टिंग मटेरियल ले लिया, उसके बाद उसको सिंथेसाइज किया, तो कितने स्टेप्स होते हैं बीच में। आप जानते हो कि केमिस्ट्री के उसमें हर स्टेप पर यील्ड कम हो जाएगी, फिर प्योरिटी की बात आती है। तो अल्टीमेटली ये जो केमिकल प्रोसेस है, अब बायोटेक्नोलॉजी वालों ने क्या सोचा कि इतने स्टेप्स की जगह अगर ये एक स्टेप में मिल जाए तो कैसे। अब एक स्टेप में कैसे मिलेगा, क्योंकि हर चीज़ नेचर ने बनाया है। नेचर में जब आप देखते हो कि फर्टिलाइजर है या फिर यूरिया है फॉर एग्जाम्पल, या कोई भी पेस्टिसाइड, किसी न किसी नेचर, किसी प्लांट में प्रेजेंट है, किसी एनिमल में प्रेजेंट है। तो उन्होंने देखा, अब जीन पता लग गया ना, जीनोम आ गया, उससे बहुत हेल्प मिली। उन्होंने देखा कि ये कंपाउंड बनाना है तो ये नेचर में कैसे बन रहा है। वो किसी जीन से, डीएनए का कुछ सीक्वेंस होगा, उससे बन रहा है और वो रिस्पॉन्सिबल होता है पहले जीन से, डीएनए से आरएनए, आरएनए से प्रोटीन बना। तो वो प्रोटीन जो बना रहे हैं या एंजाइम जो भी बना रहे हैं, सोचा गया कि अगर इस जीन को हम आइसोलेट कर लें, कहीं से जहाँ पर भी है नेचर में वहाँ से कर लें और बैक्टीरिया में डाल दें, कॉमन बैक्टीरिया उसमें डाल दिया। आप जानते हो बैक्टीरिया को क्या चाहिए, थोड़ा सा खाने के लिए चाहिए, सॉल्ट चाहिए। वो आप पानी में सोल्यूशन बना के उनको इनऑर्गेनिक सॉल्ट डाल दीजिए और थोड़ा ग्लूकोज दे दीजिए एनर्जी के लिए, वो हर घंटे में डबल हो जाएंगे। तो बैक्टीरियल ग्रोथ जो है बहुत फास्ट होती है। तो आपने शाम को लैब बंद करते समय उसमें बैक्टीरियल ये डाला और सुबह आकर के आपने उसको वर्कआउट किया, आपको प्रोडक्ट मिल गया।
जो प्रोडक्ट आप महीनों में, 3 महीने में, 4 महीने, 6 महीने में तैयार होता है, वो 24 घंटे में तैयार हो गया। तो ये कमाल है बायोटेक्नोलॉजी का। आप जेनेटिक उससे कुछ भी आप तैयार कर सकते हैं और ये काफ़ी लेवल पर हो रहा है। मैं तो दोनों से अटैच्ड हूँ, एकेडमिक्स से भी और इंडस्ट्री से भी। तो मैं कोशिश करती हूँ कि इंडस्ट्री को इस तरह के ये शुरू करा रही हूँ सब जगह, बायो प्रोसेसिंग से चीज़ें बनाएं, क्योंकि बहुत सस्ती बनेगी, वो बहुत जल्दी बनेगी। तो ये कमाल है बायोटेक्नोलॉजी का। नेक्स्ट, अब ये तो बहुत सारे, जैसे मैंने अभी बताया आपको कि ये इससे भी कर सकते हो, बायो प्रोसेसिंग से हो सकते हैं। माइक्रो एरे सुना है किसी ने? माइक्रो एरे में क्या होता है? आप एक साथ आपने सभी लोगों ने कोई ब्लड टेस्ट कराया होगा, तरह तरह के टेस्ट कुछ कराए होंगे, लेकिन अगर आपको ये कहा जाए कि 1000 टेस्ट एक साथ एक ही साथ हो जाएंगे सबका रिजल्ट, तो कैसा लगेगा? तो ये है एक चिप बनाई है, चिप आ जाती है ना, छोटी स्क्वायर डिस्क में, उसमें सपोज करिए कि 40,000 से लेकर 50,000 तक डिफरेंट डीएनए के सीक्वेंसेस उसमें अटैच कर दिए। एक ड्रॉप ब्लड डाला और आपको जहां उसमें जो डीएनए है जो कि पर्टिकुलर सीक्वेंस से जाकर के कंजुगेट करेगा, आप जानते हैं डबल हेलिक्स बनाना है उसको, और वो अपने कॉरेस्पॉन्डिंग उससे ही जाके वो करेगा, तो वहां पर जाकर के एक आपको सिग्नल मिल जाएगा। तो टेस्ट हो गया। अब दूसरा ड्रॉप, मतलब एक चिप से आप 40,000 टेस्ट कर सकते हो। तो इमेजिन कितना मतलब कन्वीनियंट हो गया हर चीज। तो ये जो चीज है बायोटेक्नोलॉजी की, दैट इज समथिंग ग्रेट। जेनेटिकली ऑल्टर्ड माइक्रो ऑर्गेनिज्म, तो सबसे ज्यादा ये है, मैं आज कोशिश कर रही हूँ कि ये कुछ ड्रग्स जो हैं ये बायो प्रोसेसिंग से बना लिए जाएं, जिसका आज केमिकल प्रोसेस है, मैं उसमें अभी भी लगी हूँ कि इसको मेन चीज़ होती है कि हम जेनेटिकली मॉडिफाइड बैक्टीरिया कैसे बनाएं। उसके लिए अगर ये पॉसिबल हो जाएगा तो ये पॉसिबल हो जाएगा कि आप किसी भी लेवल पर ये बना सकते हैं। और इस तरह की चीज़ें जो हैं ये बायोटेक्नोलॉजी में बहुत चैलेंजिंग फील्ड्स हैं, और जितने यंगस्टर्स यहाँ बैठे हैं इनको तो ये सबक ले लेना चाहिए कि आप इस तरह की रिसर्च करिए जिससे कि डायरेक्ट ये सोसाइटी को। नेक्स्ट, अब ये है तुम्हारे इंटरेस्ट के लिए है कि बायोटेक्नोलॉजी में आप कहते हैं ब्लू बायोटेक, बायो इन्फॉर्मेटिक्स, तो एक है जिसमें कंप्यूटर का यूज है। आप इन सिलिको डिजाइनिंग कर सकते हो, वहाँ पर आप कोई भी एंजाइम को डाउनलोड कर लो, क्योंकि आजकल डाटाबेसेस हैं, उनसे आप डाउनलोड करो, किसी ड्रग को आप उसका स्ट्रक्चर ले लो, उससे उसको डॉक कर दो, डॉक करके देख लो जिससे मैक्सिमम एनर्जी, गिब्स एनर्जी आएगी, वो आपका काम करेगा ड्रग। तो इस तरह की जो इंफॉर्मेशन मिल रही है कंप्यूटर बेस्ड इन सिलिको, वो बहुत ही काम की है। इसलिए बायोइन्फॉर्मेटिक्स हैज बिकम वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, स्पेशली आपके फार्मा इंडस्ट्री में बहुत ज़्यादा है, क्योंकि इनिशियल जितना आप जानते हो ना कि एक पहले क्या होता था, मैं तो केमिस्ट हूँ, ये होता था भाई इस बीमारी की दवा निकालनी है, तो हम लोग कोशिश करते थे, जैसे क्यूनिन को ले लिया, मलेरिया में होता था, क्यूनिन से क्यूनिन के डेरिवेटिव बनाना शुरू किए, पता लगा 100 डेरिवेटिव बना दिए, तब टेस्टिंग हुआ और फिर जा करके एक कोई अगर एक्टिव निकल आया तो बहुत बड़ी बात होती थी। तो ये इसमें बहुत टाइम लगता था, इतने कंपाउंड बनाइए, फिर उसमें आप टेस्टिंग करिए, फिर आपको मिला तो मिला, नहीं मिला तो कोई बात नहीं, लेकिन सालों लग जाते थे। एक ड्रग मार्केट में आने में 10 साल लग जाते नियर अबाउट, NIH से भी होता था। तो अब देखिए इसमें कितना इजी हो गया, आपने तुरंत अपना लिगेंड को डाला और उसको देखा कि ये देखो एनर्जी इसमें दे रही है नहीं दे रहा, तो आपने कह दिया कि भैया एक 24 घंटे में एक 5 साल का काम हो गया। ये चैलेंजेस, ये फैसिनेशंस हैं बायोटेक्नोलॉजी के। तो बायोइन्फॉर्मेटिक्स है। फिर हम कहते हैं ब्लू बायोटेक्नोलॉजी, ये समुद्र में तो बहुत कुछ है। आप ये एक अलग साइंस शुरू हो रही है, ओशियनोग्राफी।
आप वहाँ से एल्गा में अभी बायोफ्यूल्स निकाल रहे हैं, और वो एक अलग संसार है, उसमें तो बहुत रिसर्च अभी हो सकती है। सी बीट्स, समुद्र में जितने टाइप के ये हैं, मछली पर कितनी रिसर्च हो रही है, ये ओमेगा एसिड सब मछली में है, ऑयल, फिश ऑयल से, मतलब देयर आर सो मेनी थिंग्स। ग्रीन बायोटेक्नोलॉजी जो कि एग्रीकल्चर से रिलेटेड जितनी भी बायोटेक्नोलॉजी है, आप उसमें आप टिश्यू कल्चर कर करके फील्ड्स में आप ले जाते हो, जेनेटिक मॉडिफिकेशन हो रहा है चीज़ों का, और जेनेटिकली मॉडिफाई करके आपको चीज़ें बाजार में आ रही हैं, तो ये सब ग्रीन बायोटेक्नोलॉजी। नेक्स्ट एक रेड बायोटेक्नोलॉजी, ये मेडिसिन से है, मेडिसिन से रिलेटेड जितना भी रिसर्च है वो रेड बायोटेक्नोलॉजी में होता है। वाइट बायोटेक्नोलॉजी इंडस्ट्री से रिलेटेड है, जैसे मैंने अभी बायो प्रोसेसिंग बताया आपको, तो वाइट बायोटेक्नोलॉजी हो गया। तो ये सारी इसमें आप क्लासिफाई कर सकते हो बायोटेक को, क्योंकि इतना बड़ा अम्ब्रेला है, आपको किस फील्ड में जाना है उस तरह से आप इसको क्लासिफाई करें। नेक्स्ट, ये ग्रीन बायोटेक्नोलॉजी में दो इश्यूज हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट हैं, एक तो जेनेटिकली मॉडिफाइड फूड्स और दूसरा है बायोफ्यूल्स, क्योंकि हमको फ्यूल की ज़रूरत है, अगर प्लांट बेस्ड हम निकाल सकें तो बहुत अच्छा। ये दो मेन इश्यूज हैं जिसमें रिसर्च की जा सकती है। नेक्स्ट, जेनेटिक इंजीनियरिंग तो बहुत ही इम्पोर्टेंट हो गया है, क्योंकि जैसे मैंने कहा कि कोई भी एक जीन एक प्रॉपर्टी के लिए हो सकता है, या सेवरल जीन्स एक प्रॉपर्टी के लिए, या एक जीन सेवरल प्रॉपर्टीज के लिए भी हो सकता है। तो आप अगर उसको रिकॉग्नाइज कर लें, आइडेंटिफाई कर लें कि ये सीक्वेंस डीएनए का एक जीन है जो कि एक प्रॉपर्टी के लिए ये है, तो आप उसको लेकर के कुछ भी कर सकते हैं, यू कैन प्ले विद इट। तो जेनेटिक इंजीनियरिंग नाउ हैज बिकम एक्सट्रीमली इम्पोर्टेंट। नेक्स्ट, ये देखिए, ये एग्जांपल्स हैं जेनेटिक इंजीनियरिंग के। आपने देखा होगा पहले जो टमाटर आता था वो 2 दिन रखने में सड़ने लगता था, लेकिन आजकल जो है शेल्फ लाइफ इतनी बढ़ गई है कि आप उसको रखे रहिए 10-12 दिन खराब नहीं होते। दूसरा, टमाटर को कभी आपने पहाड़ों पर उगते देखा था? कभी नहीं होता था। आजकल टेरेस फार्मिंग, पहाड़ों पर टमाटर उग रहे हैं, ये क्या है? ये सब जेनेटिक मॉडिफिकेशन है। ये देखिए जो आपको फिश दिखाई पड़ रही है, ये अंटार्कटिका से में पाई जाती है, जो कि बर्फ, जहाँ साल भर बर्फ जमी रहती है, उसके 5 फीट 10 फीट नीचे तक दबी हुई फिश, वो खोद करके फिश निकालते हैं। ये कैसे जिंदा रहती हैं इतने अंदर, इतनी बर्फ के अंदर इतने सालों तक अपनी जिंदा रहती हैं? उसको स्टडी किया गया तो ये देखा गया कि उसमें स्पेशल जीन्स हैं जिनकी वजह से वो अलाइव रहती है। उन जीन्स को निकाला गया, आइडेंटिफाई किया गया और टमाटर में डाल दिया या वेजिटेबल्स में डाल दिया। तो अब क्या होगा, ये बर्फ पर भी उग जाएगा प्लांट। तो ये चीजें जो है ये इम्पोर्टेंट चीजें हैं। बाकी ये सब तो नेक्स्ट प्लीज। या ये कुछ एग्जांपल्स हैं, देखिए कितने इंटरेस्टिंग एग्जांपल्स हैं कि एक ह्यूमन जीन को ये उसमें डाल दिया गया शीट में, और उसमें जो ह्यूमन जीन्स में एक अल्फा-1 एंटीट्रिप्सिन कहलाता है मॉलिक्यूल, वो लंग कैंसर का ये एंटीडोट है। तो इसलिए उसमें जब शीट में डाला गया तो उसके मिल्क से ये मेडिसिन निकाल लो, क्योंकि वो जेनेटिक उसमें आ गया ना। एक ये हुआ अफ्रीकन कंट्रीज में, एक रोटा वायरस बहुत भयंकर, बच्चों को डायरिया होने लगा, बच्चों की डेथ होने लगी। इन लोगों ने क्या किया कि उसका जीन जो है वो राइस में डाल दिया, पैडी में। अब राइस तो हर कोई खाता, तो वो राइस जो जिसने खाया वो जीन आ गया और फिर डायरिया बंद हो गया। तो ये इस तरह की चीज़ें भी बहुत हुई हैं। और ये जो मैंने बताया कि जो आइस के अंदर फिश रहती है उसके जीन को टमाटर में डाल दिया। एक सिल्क बनाने के लिए, आप जानते हैं सिल्क वॉर्म होता है जिसकी सलाइवा से सिल्क बनाया जाता था। उन्होंने क्या किया कि उसका जीन ले करके और गोट में, बकरी में डाल दिया। अब बकरी के दूध से सिल्क बनाइए मतलब बड़े ये चैलेंजेस, बड़े फैसिनेशंस हैं। तो ये एंटीबॉडी
अब तो केले में एंटीबॉडी डाल दे रहे हैं स्मॉल पॉक्स की और किस डिजीज की। अब वो केला खाइए आपको बीमारी नहीं होगी वैक्सीन की जगह। तो देयर आर वंडर्स। नेक्स्ट प्लीज, एक ही लैंग्वेज है। देखिए ये याद रखिए, आप चाहे प्लांट में देख लीजिए, बैक्टीरिया में देख लीजिए, आप एनिमल्स में देख लीजिए, ह्यूमन में देख लीजिए, वही डीएनए है, वही आरएनए है, वही प्रोटीन, कोई फर्क नहीं। तो एक लाइफ जहाँ है उसकी एक ही भाषा, एक ही लैंग्वेज है। आप कहीं से जीन निकाल के किसी में डाल दीजिए, ठीक है, बायो कॉम्पेटिबल होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि कहीं भी कोई भी हो जाएगा, लेकिन है वही, एक ही लैंग्वेज है। नेक्स्ट, अब ये देखिए एग्जाम्पल है जो आप लेफ्ट को देख रहे हैं, मटर की एग्जाम्पल है कि एक मटर में ये जो लेफ्ट को है ये जेनेटिकली मॉडिफाइड है और इसमें कोई पेस्टिसाइड छिड़कने की ज़रूरत नहीं है। इसको कभी भी इंसेक्ट नहीं खाएगा क्योंकि इसमें ऑलरेडी वो जीन डाल दिया गया है जो कि इंसेक्ट उसको नहीं खा सकता। और राइट में जो है वो आपका ऑर्डिनरी है, जिसमें जीन नहीं पड़ा है, उसको इंसेक्ट खा, आप घरों में देखा होगा, रखिए तो आपको खा जाते हैं, इंसेक्ट खा जाते हैं। तो ये जो है ये फायदा है जेनेटिक इंजीनियरिंग का। नेक्स्ट, देखिए वाइट, ये तो इंडस्ट्री वाला है। इंडस्ट्री वाला मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ। इसमें मेन चीज़ बायो प्रोसेसिंग की है और बायोफ्यूल्स की है। अभी लेटेस्ट ये है, देखिए जेट्रोफा में, हालांकि बहुत दिन तक ये हुआ, लेकिन जेट्रोफा अभी कॉमर्शियली वायबल नहीं है। आप जानते हो कि इंडस्ट्री में आप लैब में एक्सपेरिमेंट करके प्रूव कर सकते हो, लेकिन इंडस्ट्री में कॉस्ट इफेक्टिव होना चाहिए, वहाँ पैसे करके, कॉस्ट इफेक्टिव नहीं। तो जेट्रोफा कॉमर्शियली वायबल नहीं है, इसलिए आजकल लोग वेजिटेबल ऑयल्स और बहुत सारे इस पे एलपी पर कर रहे हैं, जो कि ऑल्टरनेटिव फ्यूल्स मिलना चाहिए, वो एक तरह का ये हो रहा है। और ग्रीन केमिस्ट्री सुना होगा, अभी ग्रीन केमिस्ट्री आ गई। ग्रीन केमिस्ट्री मीन्स कि जितनी आप रिएक्शन, केमिस्ट्री में सबसे ज़्यादा एक्सीडेंट्स होते थे। हम लोग तो लैब्स में देखे हैं, मेरे ही साथ बहुत एक्सीडेंट्स हो चुके हैं, फायर के, कभी कुछ हो जाता था। लेकिन अब ये प्रोसेसिंग ये लोग कह रहे हैं कि टॉक्सिक नहीं होना चाहिए ग्रीन केमिस्ट्री में, सेफ केमिस्ट्री। एनीवे, नेक्स्ट, ये कुछ देखिए एग्जाम्पल हैं जो फर्मेंटेशन से बने हैं। अब पिकल्स तो हमारे यहाँ कॉमन है, इंडिया में तो पिकल्स लोग खाते हैं, वो भी फर्मेंटेड हैं। और बाकी जो साउथ इंडियन खाना है, ज़्यादातर इडली, डोसा, ये सब तो फर्मेंटेड नहीं है। तो फर्मेंटेशन फूड्स जो हैं ये इजीली डाइजेस्टेबल हैं और ये काफ़ी मार्केट इनका अच्छा है। नेक्स्ट, ये बायोडीजल बनाया जा रहा है जो प्लांट बेस्ड, जैसे मैंने कहा वेजिटेबल ऑयल्स। नेक्स्ट, बायोडीजल ये फैटी एसिड्स जो एस्टर्स के ट्रांसएस्टरिफिकेशन से, हाइड्रोलिसिस से, क्योंकि वही लॉन्ग चेन वो है, पेट्रोल में भी वही है। तो ये केमिकल प्रोसेस का डेवलप कर रहे हैं डिफरेंट इंडस्ट्रीज। ये वेजिटेबल ऑयल से रैपसीड ऑयल, जेट्रोफा, महुआ, मस्टर्ड, फ्लैक्स, सनफ्लावर, कोई भी ले करके ये लोग देख रहे हैं कि कॉमर्शियली वायबल होगा तो उसको यूज़ करेंगे। नेक्स्ट, प्लांट, ये सोलर एनर्जी तो आप जान रहे हैं आजकल सोलर एनर्जी का बहुत कुछ यूज़ हो रहा है, लेकिन प्लांट बेस्ड सोलर एनर्जी, आप जानते हैं क्लोरोफिल बनने में सोलर एनर्जी बहुत ज़रूरी है, बिना सनलाइट के क्लोरोफिल नहीं करता। इसका मतलब प्लांट्स जो है वो सोलर एनर्जी को कैप्चर कर रहे हैं। तो ये अब इस पर भी रिसर्च हो रही है कि प्लांट्स मैक्सिमम एनर्जी को स्टोर कर लें ताकि उस एनर्जी को फिर यूज़ किया जा सके। तो ये भी, इस पर भी काफ़ी रिसर्च हो रही है। और ये जेनेटिकली मॉडिफिकेशन क्रॉप्स का वो तो ठीक है। तो इस तरह के जो ये है कि आने वाले सालों में ये बायो इंजीनियरिंग बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। नेक्स्ट, अब हम आते हैं मेडिकल उसमें भी बायोटेक्नोलॉजी के बहुत यूजेस हैं। नेक्स्ट प्लीज, रेड बायोटेक्नोलॉजी में ड्रग डिस्कवरी,
ड्रग डिस्कवरी में मैंने बताया आपको बायोइन्फॉर्मेटिक्स का बहुत यूज़ है, आप वहाँ से टाइम कम कर सकते हो। फार्मेकोजीनोमिक्स है जो कि कॉम्बिनेशन है फार्मेकोलॉजी और जीनोमिक्स का। जब आपको टोटल जीनोम पता है तो मैंने कहा ना आपको टारगेट पता है कौन सी डिजीज का कहाँ टारगेट है, तो आप डिज़ाइन करिए ड्रग को उसी तरह कि उसी टारगेट पे जाके अटैक करें, उसको टारगेटेड डिलीवरी बोलते हैं। इस पर भी हम लोग भी काफ़ी रिसर्च हो रही हैं ड्रग की टारगेटेड डिलीवरी पर, कि वो वहीं पर। आपने देखा होगा ना एंटीबायोटिक्स लोग कहते हैं जब इन्फेक्शन होता है तो एंटीबायोटिक हो जाता है, तो एंटीबायोटिक अगर आप ज़्यादा खा लीजिए तो आपको इल इफेक्ट हो जाएगा, कुछ ना कुछ रैशेज हो जाएंगे, कभी कुछ हो जाएगा। तो उसको भी अवॉइड करने के लिए कि भाई इसके इल इफेक्ट्स ना एंटीबायोटिक्स के, उसके लिए भी ये माना जा रहा है। देखिए एक नई ब्रांच आ रही है पर्सनलाइज्ड मेडिसिन। पर्सनलाइज्ड क्या है इसको शॉर्ट में मैं बता दूं। मान लीजिए ब्लड प्रेशर के 10 पेशेंट किसी डॉक्टर के पास गए, सबने कहा हमको हाई ब्लड प्रेशर बीमारी है, और अब डॉक्टर ने क्या करेंगे, वो 10 पेशेंट को एक दवा दे देंगे क्योंकि सबको हाई ब्लड प्रेशर है। लेकिन क्या होता है उसमें 10 में से मान लो 4 ठीक हो गए, 3 जो है उनको असर ही नहीं हुआ और 2 को इल इफेक्ट हो गए। ये क्या है? इसलिए चूंकि हर एक की जेनेटिक मेकअप एक सा नहीं है। हर आप यहाँ बैठे हुए इतने लोग हैं, कोई 2 आइडेंटिकल हैं नहीं। वर्ल्ड ओवर लोग बोलते हैं कि कोई भी 2 इंडिविजुअल आइडेंटिकल नहीं, इतना जेनेटिक वेरिएशन है। तो भैया एक ही दवा फिर सब पे क्यों काम करें? जब हम सब अलग अलग हैं तो अलग अलग होना चाहिए। तो ये पर्सनलाइज्ड मेडिसिन की बात है कि क्यों इल इफेक्ट कुछ को होता है कुछ को नहीं होता। उसके लिए हम ये डेवलप कर रहे हैं, ये लोग जेनेटिक टेस्टिंग कर रहे हैं, और माइक्रो एरे मैंने ऑलरेडी बता दिया कि आप थाउजेंड्स ऑफ टेस्ट एक सेकंड में कर सकते हैं। नेक्स्ट ये तो जीन्स का मैंने अभी जीन्स भी आपको बता दिया कि ह्यूमन जीनोम में पहले कहा गया था कि 30,000 प्रोटीन कोडिंग जीन्स हैं, लेकिन अभी ये हो रहा है, बाकी को कहा गया जंक डीएनए है, लेकिन ऐसा नहीं है। अभी जो है धीरे धीरे रिसर्चेस हो रही हैं कि बाकी जीन जंक डीएनए नहीं है, उसमें भी काफ़ी चीज़ें यूजफुल हैं। तो ये तो हर एक रिसर्च में होता है, पहले कुछ कहा जाता है फिर उसमें इम्प्रूवमेंट होता है। तो इसमें जेनेटिक इंजीनियरिंग में भी काफ़ी इम्प्रूवमेंट्स अभी हो रहे हैं। नेक्स्ट, अब देखिए 99.9% आपके जीन्स जो हैं वो आपके बगल में बैठे जो भी हैं उससे मैच कर रहे हैं। 99, क्योंकि हम लोग सब ह्यूमन हैं तो उतने जीन्स तो एक से होंगे, 99.9% सिमिलर हैं। लेकिन ये जो 0.1% डिफरेंस है, आप सोचिए दुनिया की पूरी पॉपुलेशन कितना होगा, अरबों पॉपुलेशन है, और वो 0.1% के डिफरेंस की वजह से। जस्ट इमेजिन, जीन्स वेरी अबाउट वन बेस पेयर एवरी 1000 डिफरेंट है हर एक इंडिविजुअल में। तो ये जो फार्मा कंपनीज हैं जो ड्रग बना रही हैं, ये इसी 0.1% में इंटरेस्टेड है, क्योंकि वहीं पर सारे टारगेट्स डिफरेंट हैं। सेवरल इयर्स आफ्टर ये जो ब्रेका 1 ब्रेका 2 बहुत फेमस है, ये तो ब्रेस्ट कैंसर के जीन्स हैं जिन पर की पेटेंट की लड़ाई हो गई थी, और वो यूएस और ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड और सब इन्वॉल्व हो गए, मतलब इंटरनेशनल लेवल पर मुकदमा चल रहा है पर इनके पेटेंटिंग के लिए, लेकिन वो बाद में नहीं डिसाइड, वो पेटेंट नहीं कर पाए। एनीवे ये चीज़ें हैं जो कि बहुत ही पॉपुलर हैं। नेक्स्ट, जीन ड्रग, और ये हम लोग ऐसे मैंने बताया ना, कोई भी जीन में आप जानते हैं 4 बेसिस हैं, ATGC, एडेनिन, थाइमिन, गुआनिन, साइटोसिन, ये कब होते हैं। कहीं पर अगर एक बेस किसी तरह से डिफरेंट हो गया तो म्यूटेशन हो गया, वो प्रोटीन नहीं बनाएगा तो दूसरी प्रोटीन बना देगा या कुछ आपको डिजीज हो जाएगी। तो इसको SNPs बोलते हैं, सिंगल न्यूक्लियोटाइड पॉलीमॉर्फिज्म। एक बेस
से सारा डिफरेंस हो जाता है। नेक्स्ट, ये देखिए सिकल सेल एनीमिया आपने सुना होगा। इसमें क्या है, सिर्फ एक जगह एक एडेनिन थाइमिन से डिफरेंस हो गया, स्वेपिंग हो गया, बस सिकल सेल एनीमिया। डेंजरस डिजीज बहुत कुछ है ये HIV में जो आप सुनते हो ना, ये बहुत छोटी छोटी म्यूटेशन से अगर उसको करेक्ट किया जा सके तो उसका सोल्यूशन निकल सकता है। नेक्स्ट, ये देखिए जेनेटिक इंजीनियरिंग और जीन थेरेपी शुरू हो रही है। अब लोगों ने कहा कि ठीक है डायबिटीज है, डायबिटीज का मतलब क्या है कि आपके अंदर ये ग्लूकोज को ये करने का ये खत्म हो गया, जीन खत्म हो गया, तो इंसुलिन नहीं बन रहा है, तो उसके लिए भी जीन रिस्पॉन्सिबल है। तो अगर आप जीन को इंट्रोड्यूस कर दें या जीन को रिमूव कर दें, डिलीट कर दें, दोनों तरह से आप जेनेटिक इंजीनियरिंग कर सकते हैं। आप जीन डाल दीजिए या जीन को हटा दीजिए, तो ये जीन थेरेपी हो गया। नेक्स्ट, ये इंसिलिको मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया। बायोइन्फॉर्मेटिक्स में ये पहले जो इंसिलिको काम हो रहा है बहुत इम्पोर्टेंट है ड्रग डिज़ाइन के लिए, क्योंकि हम बहुत चीज़ों को वहाँ से हटा सकते हैं। हम ये इंसिलिको करके डॉकिंग करके, अब एक चीज़ हुई डॉकिंग में भी कि पहले क्या करते थे, एक प्रोटीन डाउनलोड कर लिया, एक लिगेंड एक ड्रग लिया, उससे डॉक किया और एनर्जी गिव्स एनर्जी कैलकुलेट कर ली। अब जो है वो कहते हैं कि ये तो सिस्टम में ये कहाँ है, कोई आइसोलेटेड मॉलिक्यूल नहीं है, वहाँ तो बहुत सारी चीज़ें, वो वाटर मॉलिक्यूल्स हैं, दूसरे मॉलिक्यूल्स हैं। अब वहाँ का एनवायरनमेंट फर्क है, तो आप कैसे कह सकते हो कि इसीलिए बायोइन्फॉर्मेटिक्स के पहले वाले जो रिजल्ट थे सब फेल हो गए क्योंकि वो आप नेचुरल एनवायरनमेंट नहीं बना पाए। अब जो है ये डायनेमिक सिमुलेशन आ गया। डायनेमिक सिमुलेशन का मतलब होता है कि आप मॉलिक्यूल में वही एटमॉस्फेयर पहले क्रिएट करोगे जो आपके लिविंग सिस्टम में है, और फिर आपको ये डायनेमिक सिमुलेशन हम फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स में करते हैं। हर फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में क्या चेंज हो रहा है, तो अब ये इसमें भी ये हो गया, प्रोग्रेस हुई है बायोइन्फॉर्मेटिक्स में। इन सिलिको वर्क में हम लोग इसको डायनेमिक सिमुलेशन से करते हैं। नेक्स्ट, आई थिंक दिस हैज ऑलरेडी बीन डिस्कस्ड। हम बायोइन्फॉर्मेटिक्स सॉल्यूशंस को जो है बहुत ज़्यादा रीडिफाइन कर दिया गया है, और फिर से इसमें हम लोग बहुत सारे चैलेंजेस ढूंढ रहे हैं। नेक्स्ट, ड्रग डेवलपमेंट में देखिए अब ये नए सब्जेक्ट्स आ रहे हैं, बच्चों के लिए है। आप ये मत सोचिए कि केवल इंजीनियरिंग और मेडिकल रह गया देयर आर सो मेनी, अब तो बहुत ज़्यादा इंटरडिसिप्लिनरी है, आप किसी भी उसमें जा सकते हो। तो बहुत सारे जीनोमिक्स, प्रोटियोमिक्स, कॉम्बिनेटोरियल केमिस्ट्री, थ्रू आउट ये सारी चीज़ें जो है नई निकल के आ रही हैं। मेटाबोलोमिक्स है, अब प्रोटियोमिक्स में ही कितनी स्टडी हो रही है, जीनोमिक्स में कितनी स्टडी हो रही है, तो बहुत सारी नई नई चीज़ें निकल कर के आ रही हैं। और ये आपका बायोइन्फॉर्मेटिक्स में आप डेटाबेसेस बना रहे हैं आजकल। पेशेंट्स जितने हॉस्पिटल्स हैं सबको कहा जा रहा है कि आप पेशेंट्स का डेटाबेस बनाएं। हर पेशेंट का डेटा कलेक्ट हो रहा है, और जब काफ़ी थाउजेंड्स में हो जाता है तो स्टैटिस्टिकल एनालिसिस करके कुछ रिजल्ट्स मिलते हैं जिसके बेसिस पर अब अच्छे ड्रग्स बनाए जा सकते हैं। नेक्स्ट, ये देखिए ये एग्जाम्पल बच्चों के लिए है। पहले जो है एक 8 से 10 साल लग जाते थे नई ड्रग को, जो अमेरिकन ये है NIH है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ, वो उसको रिकमेंड करता था, तब वो मार्केट में आती थी ड्रग। लेकिन अभी देखिए ये कमाल है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का। ये पेपर छपा था 2019 में, ये पहली बार कि एक ड्रग जो है जो कि पहले ईयर्स लगते थे बनने, कम से कम 3-4 साल लगते थे, वो 40 दिन में बना के निकालते। तो ये फायदा हुआ है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। नेक्स्ट में देखिए ये फार्माकोजीनोमिक्स, आजकल ये भी बच्चों तुम ले सकते हो, नया सब्जेक्ट है। इसमें वेरिएशन ह्यूमन पॉपुलेशन में जो ड्रग्स जो मैंने बताया आपको पर्सनलाइज्ड मेडिसिन में, उसमें भी काफ़ी काम हो रहा है और SNPs पर। नेक्स्ट पर्सनलाइज्ड मेडिसिन है जो कि
जैसे मैंने कहा कि हर व्यक्ति, हर पेशेंट का जीनोमिक्स फर्क है और उसको फर्क ड्रग मिलना चाहिए। जो नेक्स्ट पीपीटी में आई थिंक आई हैव शोन, नेक्स्ट बताइए। या अब देखिए इसमें लेफ्ट में है कि ये 10 पेशेंट हैं, 10 पेशेंट एक डॉक्टर के पास गए, उसने एक ही दवा, एक ही कैप्सूल सबको दे दिया, लेकिन आप देख रहे हैं कि इसमें से 3 ठीक हो गए, 3 जो है उसमें इफेक्ट ही नहीं हुआ और 2 को एडवर्स ये हो गया, एलर्जी हो गई। अब जो है, अब ये देखिए टेस्टिंग के बाद आप पूरा टेस्ट करते हो और उसके बाद जो है अलग अलग दवा सबको दी गई उनके जीनोमिक्स के अकॉर्डिंग और उसमें 100% सक्सेस। तो ये पर्सनलाइज्ड मेडिसिन का कमाल है। नेक्स्ट, या देखिए इसमें भी है, कोई किसी को डॉक्टर कहता है आधी गोली खाइए, किसी को कहता है 1 खाइए, किसी को कहता है 4 घंटे में खाइए, किसी को कहता है 6 घंटे में खाइए। तो ये डोज डिपेंडेंट, हर एक की कैपेसिटी अलग होती है और हर एक का डोज भी अलग होता है। नेक्स्ट, ये फार्मेको इन्फॉर्मेटिक्स का बहुत बड़ा फ्यूचर है, इसमें अगर काम करिए, ये भी बच्चों के लिए है, आप लोग इसको देखिए, इसमें काम करके आपको बहुत अच्छा फ्यूचर में बहुत इसमें स्कोप है काम करने के लिए। नेक्स्ट में नैनो टेक्नोलॉजी, जैसे मैंने कहा आपको कि नैनो लेवल पर एक नई साइंस आ गई है, बिल्कुल उसमें प्रॉपर्टीज ही बदल गई हैं सब उसकी। ये इसमें बहुत सारी मेडिसिन में यूज हो रहे हैं, नैनो मेडिसिन बना रहे हैं, बायोमेडिकल एप्लीकेशंस हैं, बायोमार्कर्स, कैटलिस्ट, क्योंकि सरफेस बढ़ गई तो कैटलिस्ट अच्छा होगा, अच्छे अब्जॉर्बेंट्स बन रहे हैं और इसमें इलेक्ट्रिसिटी में बहुत ये है, सेंसिंग में है, हर चीज़ में अभी नैनो का एप्लीकेशन होगा। नेक्स्ट, इसमें देखिए मेटेलिक नैनो पार्टिकल्स, नैनो क्रिस्टल्स, नैनो वायर्स, थिन फिल्म्स, फुलरीज, बहुत तरह के यूजेस हो रहे हैं नैनो के अलग अलग फॉर्म्स में। नेक्स्ट ये हम लोग भी इसी पर ये रिसर्च कर रहे हैं कि ब्लड से, मेरा अपना ये था कि अगर हम कोई ड्रग खाते हैं या ओरल लेते हैं, इंजेक्शन से लेते हैं किसी भी तरह, तो इम्यून सिस्टम उसको डिग्रेड करता है। इवन जो मुंह में आप गोली रखते हैं वहीं से सलाइवा से शुरू हो जाता है डिग्रेडेशन, क्योंकि हमारा इम्यून सिस्टम सिर्फ खाने को रिकॉग्नाइज करता है, नॉन फूड मटेरियल होगा तो डिग्रेडेशन। तो उसको रोकने का एक यही तरीका है कि हम उसी पेशेंट का ही ब्लड ले करके और उसमें से हमने निकाला है, ये मेरा लेटेस्ट अभी है, उसका पेपर भी भेजा है, ये प्लेटलेट और आरबीसी के मेम्ब्रेन निकाल के नैनोटाइज किया, उसमें ड्रग को डिस्पर्स कर दिया, ये वेक्टर बना के, और उसमें हम एंटीबॉडी अटैच करके दे देंगे। तो एक डोज है ना, दूसरी डोज की जरूरत नहीं, वो टारगेट पे पहुंचेगा, अपना काम करेगा। नेक्स्ट, ये आप जानते हैं ना, कैंसर पेशेंट्स को जब ये कीमोथेरेपी रेडिएशन देते हैं, रेडिएशन से किल करते हैं सर्जरी के बाद, तो अब ये नैनो वालों ने क्या किया, गोल्ड नैनो पार्टिकल्स डाल देते हैं, वो कैच करते हैं रेडिएशन को, कैच करके उसका इफेक्ट मल्टीपल टाइम्स बढ़ जाता है, तो जनरली फिर नॉर्मल सेल्स इफेक्ट नहीं होते। नेक्स्ट, these are main applications. Any questions please? किसी को कुछ भी पूछना हो? बच्चों को पूछेगा ये फोटो खींच लेते उसके बाद 4 मिनट में वहाँ में लगा दें कैमरा में। 2 माइक नहीं का हैंड माइक 2 क्या Ma'am, science has developed and many innovations in the field of biology. But I have heard everywhere that there is no technology which can make blood. Is there any technology which can in future make the blood? ब्लड सिंथेसाइज कर सकते हैं कि मेरे कहने का मतलब ये है कि अभी तक कोई भी ऐसी टेक्नोलॉजी नहीं है पूरे विज्ञान में जो हमारे खून को बना सके। आज भी अगर किसी भी इंसान को खून की जरूरत पड़ती है
तो वो ब्लड बैंक से लेता हो और ब्लड बैंक में खून डोनेट करके ही आता है। वेरी गुड क्वेश्चन, एक्सीलेंट क्वेश्चन। आप जानते हो ब्लड ग्रुप्स में ए, बी, ओ कई तरह के ब्लड होते हैं ना, बी प्लस, ओ प्लस, ओ पॉजिटिव, ओ नेगेटिव। ये क्या है? सॉरी, ब्लड के जो है ना ब्लड ग्रुप्स आप जानते हो ना, ब्लड के ए, बी प्लस होता है, ओ प्लस होता है, क्या कई तरह के ब्लड ग्रुप्स हैं, उनमें फर्क होता है, प्रोटीन वही है लेकिन एपिटोप फर्क होते हैं। और आज ये रिसर्च हो गई है कि आप एक एपिटोप को दूसरे में कन्वर्ट कर सकते हो। इसका मतलब ये जो प्रॉब्लम है ना कि अगर किसी का वो वाला जो है केवल डोनर है और दूसरा एक्सेप्टर ही होगा, ऐसा नहीं है। अब ये लोग चेंज कर ले रहे हैं। और जहाँ तक सिंथेटिक ब्लड की वो है जरूरत है, अभी बना नहीं है लेकिन प्रोसेस नोन है। ये लोग बना लेंगे, सिंथेटिक ब्लड भी बन जाएंगे। सिंथेटिक ऑर्गन्स बना रहे हैं, चिप, लिवर और चिप। तो सिंथेटिक ऑर्गन्स भी बन रहे हैं, उसकी जगह किसी भी ऑर्गन फेलियर होगा उसकी जगह दूसरा चिप लगा देंगे। तो ये एआई का कमाल है। तो एपिटोप से चेंज हो रहा है, ब्लड ग्रुप्स की अब प्रॉब्लम नहीं रहेगी। Now there is a question, very interesting question. They are genetically modified crops, foods. ये कुछ लोगों को इसमें वो है कि ये नुकसान करेगा खाने से। तो लेकिन एक चीज मुझे बताइए, बिकॉज बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स पर ये क्वेश्चन हुआ है और डिस्कशन भी हुआ है, लेकिन मुझे ये बताइए कि हम लोग तरह तरह के खाने खाते हैं, हर एक में डीएनए फर्क है, फर्क सीक्वेंस वाला डीएनए खा रहे हैं नहीं खा रहे हैं, और नहीं हम लोग एक तरह का खाना शुरू करते हैं जीवन में, कभी वेजिटेरियन नॉन वेजिटेरियन हो जाते हैं, कभी तो ये जो वेरिएशन है डीएनए का, ये तो हम लोग सदियों से खाते आए हैं। तो अगर उसमें एक म्यूटेशन किसी में कर भी दिया तो आई डोंट थिंक कि कोई नुकसान होगा। अब इंसेक्ट्स देखिए, ये अलग क्वेश्चन है, बिकॉज इंसेक्ट्स का जो वो तरह तरह से करते हैं स्मेल से। जैसे हम लोग भी फूड, अगर हमको अच्छी स्मेल नहीं आई तो हम उसको नहीं खाएंगे, हमको टेस्ट अच्छा नहीं लगा तो नहीं खाएंगे। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है इतनी कड़वी दवा जो आपको फायदा भी कर सकती है, इसका ये मतलब नहीं। इंसेक्ट्स में उतना ये नहीं है, डिस्क्रिशन वाली चीज नहीं है, जो फैक्टर 6 कहलाता है, उनको स्मेल नहीं अच्छी लगती, नहीं खाते। तो ये रीजन नहीं है, बिकॉज आई डोंट फाइंड एनी लॉजिकल रीजन। अब टमाटर है, देखिए मैंने एग्जांपल दिया, ये कम से कम पिछले 10 साल से जेनेटिकली मॉडिफाइड खा रहे हैं। तो ये तो एक देखिए फूड के मामले में एक सेंचुरी के बाद पता लगता है कि टाइम लगेगा, अभी हम कुछ नहीं कह सकते। लेकिन अभी तक कोई केस ऐसा नहीं मिला है जिसमें हम कह सकें कि ये नुकसान है। Good afternoon, ma'am. My question is that हम स्पेस में इतनी डिस्कवरीज कर चुके हैं, वेवलेंथ फ्रीक्वेंसी से स्टडी कर लेते हैं इतना कुछ स्पेस के बारे में, बट जो ओशन है इन कंपैरिजन ओशन में हम इतनी डिस्कवरीज भी नहीं कर पाए हैं, ओशन के मतलब ज़्यादा डेप्थ में भी नहीं जा पाते हैं। एंड यू हैव मेंशन्ड दैट ग्रुप बायोटेक जो आया है वो कर सकते हैं, बट व्हाट इज स्टॉपिंग अस फ्रॉम स्टडीइंग द ओशन? कुछ तो एक मेजर प्रॉब्लम होनी चाहिए। नहीं, मेरा आपका सवाल क्या है कि ओशन की कितनी डेप्थ तक? नहीं, ओशन में हमारी जो डिस्कवरीज हैं हाँ। इन कंपैरिजन बहुत कम है, हाँ। और ओशन को हम एक स्टडी कर नहीं पा रहे सही तरह से। तो वो फैक्टर क्या है, मतलब क्यों नहीं हो रहा है ओशन पर? क्यों नहीं हो सकता? देखिए ओशन, आप ये तो आपने ऐसा क्वेश्चन किया ना कि अभी तक हम लोगों ने जेनेटिक्स में स्टडी क्यों नहीं की थी, क्योंकि रिसर्च अपनी स्पीड से चलता है और वन थिंग लीड्स टू अनदर। ठीक है, ओशन बहुत दिनों से है, लेकिन लोगों का ध्यान ज्यादा लैंड पर, जो एनिमल्स हैं जमीन पर जो है वो सामने दिखाई पड़ता है ना, एग्रीकल्चर के प्लांट्स दिखाई पड़ते हैं। समुद्र के अंदर जा करके वो आपने सबमरीन्स बनाए, तब जाके आदमी अंदर गया, तब देखा कि वहाँ पर एल्गा भी उग रहा है,
या बहुत सारे सीवीड्स हैं या क्या क्या है, तो वहाँ तक पहुँचना और लेना वो एक डिफिकल्ट था ना। अब जब आदमी वहाँ तक पहुँच गया, अब उसको इंटरेस्ट हो रहा है कि भाई यहाँ पर तो ये भी दिख रहा है हमको। उसको बिल्डिंग से अंदर गए, वहाँ देखा कि डिफरेंट टाइप के प्लांट्स हैं, ये तो लैंड पर नहीं होते, तो अब उनको इंटरेस्ट आ रहा है। तो हर चीज़ में टाइम लगता है। अगर हम मोशन से आएंगे कहते हैं, तो ओशन में ही हमारी प्रॉब्लम का सलूशन भी हो सकता है। बट जैसे कि जो स्टडीज भी होती हैं, एनिमल्स पे भी स्टडी करते हैं, लिमिटेड तक ही है, क्योंकि सॉल्यूशन आ नहीं पाता है, रिसर्च करते रह जाते हैं। तो उसमें क्या ऐसा इनेबल करें कि क्या थॉट प्रोसेस होना चाहिए? देखिए, अगर आपको ज़्यादा इसमें इंटरेस्ट है, आई एम हैप्पी, देन यू शुड कंसल्ट ओशन। ये डीबीटी ने इंस्टीट्यूट बनाया है गोवा में, दैट इज ओशियनोग्राफी पर। वहाँ पर ओशन पर ही रिसर्च हो रही है, तो आप वहाँ देखिए कि क्या वो लोग आगे क्या करना चाहते हैं ओशन पर। थैंक यू। Any other person? हेलो मैम, मेरा क्वेश्चन ये है, जैसे कि अभी आपने कहा कि जैसे ह्यूमन बॉडी में जैसे कि बहुत से लंग्स ऑर्गन्स पाए जाते हैं। कुछ दिनों पहले मैंने एक रिपोर्ट में पढ़ा था कि ह्यूमन बॉडी या जितने भी एनिमल या इंसेक्ट हैं जिन पे रिसर्च हो चुकी है, उनके ऑर्गन्स के पास भी अपना ब्रेन होता है कि वो अपनी पास्ट मेमोरीज याद करें। आपने भी कहा कि जैसे कि आगे फ्यूचर में और अभी भी काम चल रहा है कि ह्यूमन ऑर्गन्स की रिप्लेसमेंट में हम जैसे कि एक आर्टिफिशियल हार्ट लगा दें या कुछ और ऑर्गन्स भी लगा दें। तो अगर ये यंग जनरेशन पे लागू हुआ आगे समय में, तो ये ह्यूमन पूरी जाति के डीएनए पे असर नहीं छोड़ेगा? नहीं, देखिए, रिप्लेसमेंट ऑर्गन रिप्लेसमेंट कर रही है। मान लीजिए आपका लिवर फेल हो गया, ठीक है। अब एक उन्होंने क्या किया कि लिवर का जो भी सेल्स हैं उनकी बेसिक जो जेनेटिक्स है वो उन्होंने चिप पर लगा दिया, ठीक है। मैं बोल रही हूँ कि छोटे चिप पर ही आप बहुत सारी सीक्वेंसेस ये कर सकते हैं। तो वो लिवर का पूरा ये बायोमेडिकल इंजीनियरिंग में आजकल लोग यही कर रहे हैं कि चिप पर ऑर्गन बना रहे हैं, ठीक है। अब उसमें आपने पूरा जो भी बेसिक फंक्शन है सेल का वो उसमें आपने क्रिएट कर दिया आर्टिफिशियली, और फिर उसको जो है आपके उस ऑर्गन से जो आपका फेलियर हो रहा है वहाँ जाकर के उस चिप को उससे कनेक्ट कर देते उसको ऑफ करके ये अब नया काम करने लगा, ठीक है। तो उसकी जगह जो आपका फेल हो चुका है ऑर्गन, उसकी जगह ये जैसे हार्ट में नहीं होता, हार्ट में आप दूसरा हार्ट लगा देते हो, है ना। जो पुराना आपका हार्ट ये कर दिया, काम करना बंद कर दिया, उसको हटा दिया और आपने दूसरा हार्ट मशीन लगा दिया, उससे काम हो रहा है, तो काम करेगा। फर्स्टली गुड मॉर्निंग मैम। मैम अभी रिसेंटली मैंने एक रिपोर्ट पढ़ी थी, उसके अंदर मैंने ये पढ़ा कि जो ह्यूमन ब्रेन होता है वो आफ्टर डेथ कुछ मिनट्स के लिए, समथिंग अबाउट 7 मिनट्स वो अलाइव रहता है। मैम इसके पीछे क्या रीजन है कि वो डेथ के बाद भी अपनी मेमोरीज को रिकॉल करता है? गुड क्वेश्चन, बहुत अच्छा क्वेश्चन आपने किया। देखिए, व्हाट इज डेथ? ह्यूमन डेथ कब मानी जाती है? पहले ये होता था कि डॉक्टर भी पल्स देख लेते थे, आदमी की पल्स नहीं तो भी है, इसका मतलब हार्ट फंक्शन नहीं कर रहा, ठीक है। हार्ट लंग्स में सांस नहीं आता तो उसको डेथ डिक्लेयर कर देते हैं। लेकिन होता ये है कि ब्रेन अपना फंक्शन करता रहता है। हार्ट बंद होने के बाद भी ब्रेन का फंक्शन काफ़ी देर तक, समय तक चलता रहता है, सिग्नलिंग जिसको बोलते हैं। क्योंकि ब्रेन के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो तो लगातार
आप हर समय जो भी कर रहे हो, देख रहे हो, सुन रहे हो, ये कर तो ब्रेन ही फंक्शन कर रहा है ना, सिग्नल दे रहा है आपका। तो डेथ के समय अगर आपकी हार्ट फेलियर से डेथ हुई और आपका सांस बंद हो गया, ब्रीदिंग खत्म हो गया, लेकिन वो सिग्नलिंग टाइम लेता है ब्रेन का ये बंद होने में, दैट इज ऑल्सो पर्सनल लेवल पर है। किसी का ब्रेन सिग्नलिंग पहले बंद हो जाता है, किसी का टाइम लेता है। तो इसलिए आजकल जो है ब्रेन डेथ तभी डिक्लेयर करते हैं जब ब्रेन फंक्शन भी बंद हो। खाली हार्ट फंक्शन बंद होना इज नॉट फिजिकल डेथ। थैंक यू मैम। Good morning, ma'am. Ma'am, as you mentioned that biotechnology is used to find out the solution of our problems, right? You said that efficiency of pollution and fuel. So, ma'am, in future, I really think that deforestation is increasing a lot. So, there will be a deficiency of oxygen too because plants are cut down rapidly. So, ma'am, for that I have thought of an idea. Why don't we think of generating oxygen from microalgae present, ma'am? Is it going to be an effective idea for future? Because we can make it portable and make it reach to different other places too. Like, can it be a perfect solution? Why don't you take it as your research problem? That's good. If you can produce oxygen by any way, you can take the idea from plants. The plants are the best sources of producing oxygen. Yes. So what is the mechanism? What is the process by which they release oxygen? So make a artificial tool based on that mechanism. Okay. अच्छी research problem है ये तो. Thank you. गुड आफ्टरनून मैम। मैम, जो ह्यूमन होता है जब उसकी डेथ हो जाती है तो उसका जो ब्लड है वो वाटर में कन्वर्ट हो जाता है। क्या होता है? जो ब्लड होता है उसकी डेथ हो जाती है तो वो वाटर में कन्वर्ट हो जाता है। क्या होता है? वाटर पानी में क्यों कन्वर्ट हो जाता है? ब्लड कन्वर्ट हो जाता है। जब ह्यूमन की डेथ हो जाती है पानी में कन्वर्ट हो जाता है। सुना है। डेथ के बाद ये तो सारे फंक्शन खत्म हो जाते हैं ना बॉडी पे। जब फंक्शन ही खत्म हो गए तो देखो क्या होता है, ब्लड, ये ब्लड का रेड क्यों होता है? फ्लो होता है, ये होता है, और कहाँ बनता है ब्लड? हीमोग्लोबिन जो है, हीम इसको बोलते हैं, ग्लोबिन इज ए प्रोटीन, हीम इज ए पिगमेंट। वो पिगमेंट रेड कलर का होता है और ये फॉर्मेशन होता है लीवर में। जब डेथ हो जाएगी तो लीवर फंक्शन बंद हो गया, जब बन ही नहीं रहा है पिगमेंट तो फिर उसका कलर खत्म। ठीक है ना? Thank you so much everyone for your insightful questions. Now I would like to request our program coordinator, Professor K.K. Dubey sir, to present a memento as a token of gratitude to our guest of honor, Professor Krishna Mishra ma'am. Everyone, please give a big round of applause. Thank you so much, ma'am, for your presence.